ساتھ استعمال کرتا رہے اور خدا خوبصورت دن کے لیے، اس خوبصورت موقع کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ پھر فضل دیا تاکہ ہم مل کر اس کے نام کو جلال دینے والے، تاکہ مل کر اس کے خوبصورت بابرکت کلام میں سے ان کلام کی سچائیوں کو، ان کلام کی باتوں کو، ان کلام کے لفظوں کو جو خداوند یسوع مسیح خدا کے منہ سے نکلے ہیں، ہم مل کر سننے والے ہوں۔ کیونکہ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر چلتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ خدا کا کلام ہمارے گھرانوں، ہمارے خاندانوں اور ہماری زندگیوں کے لیے ہر قسم کے برکت کے دروازوں کو کھولتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام اور اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم یوحنا کی انجیل میں سے سیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں سے میں کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام خدا میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی خدا یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کے پاک کلام میں پڑھے، سنے، سمجھے، قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ ورڈز جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں خدا کا بندہ یوحنا رسول شریعت کی بابت اور فضل کی بابت بات کرتے ہوئے نظر آتا۔ وہ لکھتا ہے، شریعت تو ہمیں موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ مرد خدا موسیٰ، یہ وہ اسرائیل کا زبردست نبی گزرا ہے جسے خدا نے اسرائیل کی نجات کے لیے چنا، جس سے خدا نے آگ کی جلتی ہوئی جھاڑی میں بات کی، جس سے خدا نے مقرر کیا، جس کے ہاتھوں سے خدا نے اسرائیل کے لیے مصریوں کے لیے ملک مصر میں بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کیے۔ خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو چھڑانے کے لیے مصر کے اندر 10 طرح کی آفتیں بھجوائی۔ خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کی معرفت، اپنی قدرت اور اپنی جلال کو ان کے درمیان ظاہر کیا، تاکہ وہ خدا کی قدرت اور خدا کی قوت کو دیکھیں اور خدا کی قوم کو جانے دے، خدا کی قوم کو آزاد کریں، خدا کی قوم کو رہائی دیں۔ اور بزرگ موسیٰ وہ خدا کا زبردست نبی ہے جسے خدا نے شریعت دی، جسے خدا نے اپنا کلام دیا۔ خدا درا بدرا، حصہ بحصہ قوم بنی اسرائیل سے بات کرتا، قوم بنی اسرائیل سے کلام کرتا، اور کلام کرنے کا جو ذریعہ تھا، شریعت پہنچانے کا جو ذریعہ تھا، لا پہنچانے کا جو ذریعہ تھا، وہ بزرگ موسیٰ جسے خدا نے چنا، تاکہ وہ خدا کے کلام کو، خدا کی منہ کی باتوں کو، خدا کی شریعت کو طرح بدرا، لمحہ بلمحہ، حصہ بحصہ قوم بنی اسرائیل تک پہنچائے۔ خدا نے جب اپنی قوم سے بات کرنی ہوتی، جب انہیں کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی، جب ان کے لیے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا، جب وہ کسی مشکل میں جاتے، جب وہ کسی پریشانی، جب وہ کسی دکھ میں جاتے، تو خدا کیا کرتا؟ اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کرتا۔ اور اس سارے پروسیجر میں، ان سارے حالات میں اسرائیلیوں پر بڑی بڑی مشکلیں آئیں۔ جیسے خدا نے مصر کے اندر اپنے جلال اور قدرت کو ظاہر کیا، بڑی بڑی آفتوں کو بھجوایا، اسی طرح جب اسرائیلیوں کو خدا نے ملک مصر سے نکالا، تو اس پیریڈ میں بہت ساری مشکلات، پریشانیوں سے انہیں گزرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کا جو حاکم، اس وقت کا جو بادشاہ فرعون کا دل خدا کیا کرتا؟ بار بار سخت کر دیتا، اور ایک ایسی بڑی مشکل سے قوم بنی اسرائیل گزری، لیکن خدا نے اسے کیا کیا؟ اس غلامی کے گھر سے نجات دی۔ ایک اور چیز جو میں پڑھ رہا تھا کلام مقدس میں، خروج کی کتاب میں، وہاں لکھا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو جانے کے لیے کہا گیا ہے، تو جب وہ اپنے مال و مویشی، اپنی ساری چیزوں لے کر چلنا شروع ہوئے، تو رستے میں دریائے کلزم پر جب وہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آگے دریا تھا اور پیچھے کیا تھی؟ فرعون کی فوجیں تھی۔ فرعون نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ جا کر کیا کریں، اور
मिस्रियों को ले, फिर से गुलाम बनाए, क्योंकि हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारे लिए काम कौन करेगा। ये सारी जब बातें फरौन ने सोची हैं तो फिर पीछा किया। जब इस्राएली उस मुकाम पर पहुंचे हैं तो आगे दरिया है और पीछे क्या है, फरौन की फौजें हैं। लेकिन खुदा ने अपने बंदा मूसा से कलाम किया, खुदा ने अपने बंदा मूसा से बात की, जिसकी मार्फत खुदा ने शरीयत और अपने लॉ को अपनी कौम बनी इस्राइल पर जाहिर किया। अगर हम खरूज की किताब इसका 14वां बाब पढ़ें और इसकी 13वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, उन लोगों से जिन्हें खुदा छुड़ाने को था, जिन्हें खुदा बचाने को था, जिन्हें खुदा शरीयत देने को था, जिन्हें खुदा आजाद करने को था। जब उन्होंने फरौन की फौजों को देखा है तो वो मूसा पर बड़बड़ाना शुरू हो गए हैं, कहना शुरू हो गए हैं, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है, तू हमें क्यों उस जगह पर लेकर जाना चाहता है, क्यों 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 हमें तू इस मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। क्या मिस्र में कब्रें ना थी, क्या हम मिस्र में अच्छे ना थे, क्या हम मिस्र में जिंदगी जैसी भी गुजार रहे थे, गुलामी के अंदर थे, तो हमें क्यों वहां से निकाल के लाया। जब ये सारी चीजें खुदा के बंदे मर्द खुदा मूसा ने सुनी है तो खुदा ने मूसा से बात, खुदा ने मूसा को अपनी कुदरत और अपने जलाल के जोर से उस वक्त जो काम करने के लिए कहा। लिखा है 13वीं आयत में, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप क्या रहो, खड़े रहो, खुदा की नजात के क्या देखो, काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, जो काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम क्या रहना, खामोश रहना। खुदा के बंदा मर्द खुदा मूसा ने उनसे बात करना शुरू की है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। मेरे अजीजों, आज खुदा आपसे भी ये कलाम कर रहा है कि आपकी जिंदगी में अगर कोई मुसीबत है, अगर कोई परेशानी, अगर कोई मुश्किल है, अगर बेरोजगारी है, अगर आप बीमार है, अगर किसी वजह से परेशान है, तो आप डरने नहीं और खुदा की कुदरत को आप देखेंगे। खुदा आपके अंदर बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करने को है, जिस तरह उसने मिस्र के अंदर किया। लिखा है कि जिन मिस्रियों को, मिस्र जो है गुनाह को जाहिर करता है, मिस्र जो है परेशानी मुसीबतों को जाहिर करता है। अगर आपकी जिंदगी घरानों खानदानों में कोई परेशानी है, मुसीबत है, दुख है, तो आज खुदा उनको आपकी जिंदगियों से दूर करेगा। आज खुदा आपको उन मुश्किलात परेशानियों से आजाद करेगा। आज खुदा आपके बंधन और जुए तोड़ेगा, जिस तरह खुदा ने कौम बनी इस्राइल से कलाम किया। डरो मत, खुदा आपसे भी कलाम करता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, डरो मत। जैसे भी हालात है, जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी मुश्किल है, जैसी भी परेशानी है, जैसी भी मुसीबत है, आपने डरना नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम और खुदा की बातों पर खड़े रहना है। जिस तरह खुदा ने इस्राएलियों से कलाम किया, इस तरह खुदा आज आपसे भी कलाम करता है। खुदा आपसे भी बात करता है। खुदा आपको भी इन सारी मुश्किलात परेशानियों से, मुसीबतों से छुड़ाने के लिए यहाँ मौजूद है। जिस तरह उसने इस्राएलियों को उस बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी से आजाद किया, जिस तरह खुदा ने उनकी तरफ होकर उनकी जंग लड़ी और उन्हें खुदा ने फतह बख्शी। आज मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका आका, मेरा और आपका यीशु मसीह हमारे लिए जंग करने के लिए, हमें फतह बख्शने के लिए, हमारे बंधनों और जुओं को खोलने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि उसका फजल मेरे और आपके लिए काफी है। कलाम मुकद्दस जिस वर्ष पर हम आज सीख रहे हैं कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। खुदा ने मर्द खुदा मूसा के हाथों से बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करवाए और शरीयत अपना लॉ, अपना कानून अपनी कौम बनी इस्राएल तक पहुंचाया, जिनके दरमियान खुदा ने बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए, जिनके लिए खुदा ने दरियाए कुलजम के 2 हिस्से कर दिए, जिनके लिए खुदा ने फरौन की फौजों को, फरौन को हिला के रख दिया। और खुदा ने कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के जलाल के, खुदा की नजात के,
खुदा की कुदरती काम देखो। मेरे अजीजों, खुदा आज आपसे खुदा आपसे बात करता है। लिखा है शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत पहुंचा। फजल और सच्चाई, नजात और रिहाई खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली, उस यीशु मसीह के वसीला से जो खुदा की ज़ात का अक्ष था, जो खुदा में से निकला खुदा था। वो ना खून से, अगर हम यूहन्ना की इंजील इसका पहला बाब इसकी 13वीं आयत पढ़ें तो लिखा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। खुदा का कलमा, खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा। मैं इसकी 4वीं आयत के लिए पढ़ रहा हूँ। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का कलाम मुजस्सम होकर हम सब के लिए खुदा की नजात और खुदा की मोहब्बत को लेकर आया। हम सब के लिए वो कलाम फजल और सच्चाई को लेकर आया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद और पर्पस यही था कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करे। और उसने किया वो काम जो नजात की सूरत में उसने किया। और आज अगर मैं और आप नजात याफ्ता कहलाए जाते हैं, अगर हम पर फजल हुआ है, तो उस फजल के पीछे खुदा की मोहब्बत है, उस फजल के पीछे खुदा का प्यार है, उस फजल के पीछे खुदा का रहम है, उस फजल के पीछे खुदा बाप का करम है, उस खुदा बाप का जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारी नजात बनाकर भिजवा दिया, ताकि हर एक जिंदगी, हर एक घराना उसके फजल से भरे, उसके फजल के मुताबिक बचाया जाए। अगर हम पुराने अहदनामा में शरीयत के दौर में जब काहिनों की जिंदगी पर गौर करें तो काहिन साल में, जो सरदार काहिन होता था, उस साल में एक दफा पाक मुकाम में, खुदा की हजूरी में, खुदा के पाक मुकाम में दाखिल होता और पूरा साल वो क्या करता, अपने आप को पाक करता, पूरा साल वो तैयारी करता, पूरा साल वो अपने आप को पाक और साफ करता, ताकि वो उम्मत के गुनाहों के लिए और अपने गुनाहों के लिए जाकर खुदा की हुजूरी में कफारे के तौर पर बैलों, बछड़ों और बकरों का खून खुदा की हुजूरी में उस पाक तरीन मुकाम में लेकर जाए। पूरा साल वो क्या करता, तैयारी करता, स्ट्रगल करता, अपने आप को पाक साफ करता, अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, शरीयत के कानून के मुताबिक, जिस तरह शरीयत में लिखा है उस तरह, जिस तरह खुदा चाहता था कि मेरे हजूर आने से पहले अपने आप को पाक और साफ करना, अपने आप को हर किस्म की बुराइयों से, गुनाहों से, हर किस्म के ऐसे कामों से बचा के रखना, तब मेरी हजूरी में आकर क्या करना, कुर्बानियों को आकर चढ़ाना। और पूरा साल सरदार काहिन क्या करता, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करता। और जब वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता तो उसकी कमर पर रस्सियां बांधी जाती, उसके कमर पर रस्सियां बांधी जाती, ताकि जब वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो, और उन रस्सियों के साथ क्या है, उन रस्सियों के साथ कुछ ऐसी चीजें लगाई जाती जिसकी आवाजें सुनाई देती, यानी कि जिस तरह बैल या घंटी बांधी जाती है, ताकि जब वो खुदा की हजूरी में जाए, जब वो खुदा की हजूरी में आखिरी मुकाम में जाकर कुर्बानी चढ़ाए, तब चढ़ाए तो इस बात का जो बाहर लोग खड़े हैं उन्हें आइडिया हो कि वो खुदा की हजूरी में क्या है, अभी तक खड़ा है और अभी तक खुदा की हजूरी के अंदर वो जिंदा है, कायम है। जैसे ही वो जब तक बजती रहती तो वो उन्हें इस चीज का आइडिया रहता, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते कि काहिन जो है वो अंदर सलामती के साथ है। लेकिन जैसे ही वो बंद हो जाती, जैसे ही वो खुदा की हजूरी में गिरता, क्योंकि वो पाक तरीन मुकाम था,
सरदार कायन सालों साल क्या करता, अपने आप को पाक और साफ करता, लेकिन जैसे ही वो गिर जाता, जैसी आवाज बंद हो जाती, तो इस बात को समझ जाते कि वो काहिन क्या है, खुदा की हुजूरी में खुदा के कलाम और खुदा के कानून पर नहीं उतरा। उसे रस्सियों से फिर क्या करते, बाहर खींच लेते। लेकिन मेरे अजीजों, फजल के दौर में से जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, यहाँ पर मेरा और आपका जो सरदार काहिन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिसके वसीला से हमें नजात मिली है, जिसके वसीला से हमें रिहाई और बरकत मिली है, जिसके वसीला से हम पर फजल हुआ है, वो सरदार काहिन क्या है, अपना ही खून लेकर आके बैलों और बछड़ों का, बल्कि कलाम मुकद्दस में इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि वो अपना ही खून लेकर एक ही दफा पाक तरीन मुकाम में क्या है, दाखिल हो गया। एक ही दफा उसने अपने खून की कीमत को अदा कर कर खुदा की हजूरी में पेश कर कर हमारे लिए एक बहुत बड़ी नजात और हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, ताकि हम उस फजल के बदौलत क्या पाएं, नजात पाएं, ताकि हम उस फजल के बदौलत क्या करें, रिहाई पाएं, ताकि हम उस फजल के बदौलत क्या करें, बख्शे जाएं, ताकि हम उस फजल के बदौलत क्या हैं, खुदा की कुदरत और खुदा की हुजूरी और खुदा की बादशाहत में दाखिल होने वाले हों। अगर हम इस अबरानी 9 बाब पढ़ें, इसकी 12वीं आयत में लिखा है, और बैलों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मुकाम में, यानी कि पाक तरीन मुकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी क्या की, करवा दी। अब्दी खलासी से मुराद कि अब हम पर क्या है, सजा का हुक्म नहीं है। वो लोग जो खुदा की नजात से भर गए हैं, वो लोग जो खुदावन यीशु मसीह के लहू से, उस सरदार काहिन की अजीम कुर्बानी की कुदरत से छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं, उन पर क्या है, सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि उसने आकर क्या किया, हमारी सजाओं को जो हम पर वाजिब थी, जो हमारे गुनाह थे, जो हमारी लानते थी, जिन बातों की सजा मुझे और आपको मिलनी थी, उसने क्या किया, उन सारे गुनाहों को अपने पर उठा लिया और एक ही दफा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना खून लेकर खुदा पाक तरीन मुकाम में दाखिल हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से धो के पाक और साफ किया है। ओ उस खुदा की हम्द करते हैं, उस खुदा के नाम को जलाल देते हैं जो आज भी हमसे प्यार करता है, ओ जो आज भी हमारे जिंदगियों को, खानदानों को बचाना चाहता है। फजल और सच्चाई खुदा यीशु मसीह की मार्फत पहुंची, और फजल के दौर में जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, बहुत से लोग इस दौर का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं फजल तो हो गया है, अब जो हमारा दिल करेगा वो हम करेंगे। लेकिन पौलुस रसूल इस बात को बड़ी क्लियरली तौर पर डिक्लेयर करता है कि अगर फजल के दौर में से मैं और आप गुजर रहे हैं, अगर हम पर फजल हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह पर गुनाह क्या करें, करते जाएं। फजल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, फजल का हरगिज़ ये मीनिंग नहीं है कि हम उस फजल की दौर में से होकर गुजर रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम क्या करें, गुनाह पे गुनाह करें, हम बदी पर बदी करें, हम खुदा को रखें, उसके फजल पर भी ईमान रखें, उसके फजल के मुताबिक भी चलें, और हम दूसरी चीजों को साथ लें। मेरे अजीजों, फजल का मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह करते जाएं। फजल इसलिए हम पर हुआ है ताकि हम उस फजल को दूसरों तक, उस नजात को, उस बेऐब बर्रे की अजीम कुर्बानी को, उसके कलाम को,
اس کی سچائیوں کو، اس کی محبت کو اور اس کے پیار کو دوسروں تک لے کر جائیں، جس طرح ہم پر فضل ہوا ہے، جس طرح ہم تک سچائی اور ہم تک مسیح کی نجات پہنچی ہے، ہم نے اسی طرح اس فضل اور اس سچائی کو یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دوسروں تک لے کر جانا ہے، تاکہ بہت سی زندگیاں اس فضل کی بدولت بچائی جائیں۔ بہت سی جانیں، بہت سے لوگ ابھی بھی خدا کے فضل کے مطلب کو جانتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ لیکن پولس اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ فضل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ کیا جائے۔ فضل کے بدولت، سچائی کے بدولت مجھے اور آپ کو نجات ملی ہے، مجھے اور آپ کو رہائی ملی ہے، اور خدا اور اس کا کلام اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہمیں اس نجات، اس رہائی، اس برکت اور خداوند یسوع مسیح نجات دہندے کی قدرت کو دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔